Your life is a canvas, so paint it with the colors of your Virsa. Each hue a reflection of your experiences, culture, and values. These are the lines from this bookmark that came with the outfit that I'm wearing today. And you can see it's from Manto. Assalamu alaikum and welcome everyone to another powerful episode. These lines resonate very interestingly with the kind of conversation that we are going to have today. And you can guess well that who is our guest. Our guest is someone who has built a brand that resonates with expression, freedom, and empowerment. So please welcome Salman Parekh, the mind behind Manto. Assalamu alaikum, Salman. Walaikum and assalam. Welcome to the show. Walaikum assalam. Thank you so much for such a powerful introduction. Most welcome. Nervous कर दिया आपने. अच्छा मैंने नर्वस किया क्योंकि मैं खुद नर्वस हो रही थी आपके सामने. Before we get started into the question answer session, I'll pick up another of the cards that came with the outfit. मैं इस माशरे का हिस्सा हूँ जहाँ हम आईने का सामना सिर्फ शक्ल देखने के लिए करते हैं. By Saadat Hasan Manto. How do you resonate with this thought? I personally feel not just this thought, but there are so many amazing opinions, thoughts, philosophies that have been driven from our region, our side of the world. And until we start looking at them and start making some sense of it, तो हमने उसको बिल्कुल side पे ही क्या हुआ होता है. And then once I came across this, I found this so powerful that everybody is just focused on decoration, whereas the real value really lies in substance. Absolutely. And एक किस्सा है मेरी ज़िंदगी का जिससे मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिली. But when I read this, this is what it reminds me of. मैं अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर था, मेरा एक बहुत करीबी दोस्त बन गया और जब दोस्ती को 3-4 हफ्ते हो गए और हम फेसबुक पे एक दूसरे से ताल्लुक़ हमारा बना. उन दोस्त का नाम माइकल था. फेसबुक पे जब उन्होंने ऐड किया मुझे तो एक बिल्कुल उनका मुख्तलिफ नाम था और फिर कुछ अरसे के बाद मुझे पता चला कि वो तो अपने मुल्क के शहज़ादे हैं. ही वॉज अ प्रिंस ऑफ सर्बिया. तो जब मुझे पता चला मैंने कहा यार तुम ये छुपाते क्यों फिर रहे हो. एंड मुझे हमें 1-1.5 महीना हो गया दोस्ती को. So why did you not share it yet? तो उस पे वो कहते हैं कि because I am focused on building substance, not decoration. Oh, that's wonderful. And when you read this line, I think it's just an example of that कि unfortunately आज हम अपने कल्चर के अंदर अपने माशरे में हर बंदा डेकोरेशन के ऊपर लगा हुआ है कि यार मैं कैसे दिख जाऊं कि यार मुझे ये भी आता है, ये भी पता है. But not enough efforts put into actually building the substance that should be eventually reflected. Wonderful. I think I'm so happy that you are talking in the language that I'm sort of trying to convey through this, podcast. The whole concept of rise beyond titles. I mean, ये idea मुझे इसी वजह से आया कि we need to think beyond. वो decorated title के पीछे जो शख्स है और जहाँ आप बात कर रहे हैं विरसे की, जहाँ आप बात कर रहे हैं आईने की और हकीकत पहचानने की, तो I think these are some very powerful thoughts and words, and I'm sure this particular episode is going to be full of very deep and philosophical thoughts as well as concepts. क्योंकि यहाँ पे फिलॉसफी और डीप थॉट्स की हम बात कर रहे हैं तो हम थोड़ा सा लाइट मोड में रखेंगे ताकि हर कोई उससे रिलेट कर सके और समझ सके. सो वील स्टार्ट विद अ वेरी मिनी सेगमेंट एंड इन अ वेरी फन प्लस अ फिलोसफिकल वे. इफ मंटो कुड टॉक, मंटो योर ब्रांड कुड टॉक, ठीक है, व्हाट वुड इट से टू यू? क्या कहता मंटो आपसे अगर वो ब्रांड बात कर सकता? इंटरेस्टिंग. कभी इस तरीके से सोचा नहीं, बट मेरे ख्याल से कहने से ज़्यादा वो सवाल करता कि क्या अगर मैं नहीं होता तो तुम मुझे याद करते हैं. All right, wonderful. तो और अब उसका जवाब जो है और आप क्या कहते हैं उसका जवाब? ही उसका जवाब मुझसे ज़्यादा जो है आई बिलीव जो कम्युनिटी ऑफ कस्टमर्स एक बन चुकी है जिसके अंदर जैसे आप भी हैं,
ऑफ इनक्रेडिबल पीपल. तो आई थिंक जवाब वहाँ से आता तो बहुत बेहतर लगता, क्योंकि जब हम मंटो ब्रांड की बात कर रहे होते हैं तो काफ़ी मरतबा ये तासुर होता है कि सलमान या जो टीम है बस इनकी मेहनत और उन तमाम चीज़ों से निकल के आया. बट टू बी ऑनेस्ट, मंटो हैज़ really been built up from grounds up. कुछ ब्रांड्स होते हैं, स्पेशली आज से 20, 30, 40 साल पहले जब ब्रांड्स निकल के आते थे तो वो टॉप टू बॉटम बन रहे होते थे कि आपने स्टोर्स खोल दिए, आपने बड़ी सी मार्केटिंग कैंपेन कर दी, बिलबोर्ड्स लगा दिए और सबको पता चल जाता कि ब्रांड है. बट मंटो वाज बिल्ट फ्रॉम बॉटम टू टॉप. तो जितनी कंट्रीब्यूशन मेरी या टीम मेंबर्स की एग्जिस्ट कर रही है, उतनी कंट्रीब्यूशन जितनी कम्युनिटी ऑफ कस्टमर्स हैं उनकी भी एग्जिस्ट कर रही है. तो ये सवाल उनसे पूछ के भी बड़ा इंटरेस्टिंग लगता. मैं तो बहुत याद करता. हाँ. और खौफ भी होता है कभी कभी कि ना होता तो क्या होता. लेकिन ये ना होता तो कुछ ना कुछ हो ही जाता. एग्जैक्टली, जितनी आपकी पावरफुल थॉट्स हैं वो किसी ना किसी शक्ल में सामने आ ही जाती है. आई मीन इट्स लाइक वाटर, इट डजंट स्टॉप. एक और इंटरेस्टिंग थॉट, अगर मंटो आपसे कंप्लेन करता तो क्या कहता? जस्ट क्विक थॉट, आपके जहन में क्या कहता आपसे? हम ब्रांड की बात कर रहे हैं, आपको कॉम्प्लीमेंट देते हैं. हम मंटो ब्रांड की बात कर रहे हैं. तो अगर कंप्लेन करता तो ये करता कि कभी कभी तुम रिस्क कम ले रहे हो. ओके. और अगर कॉम्प्लीमेंट करता तो मेरे ख्याल से यही करता कि बहुत शुक्रिया कि हर चीज़ को बहुत केयर से किया जाता है. ऑल्दो फिर भी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन भूल चूक माफ. बट ये कि थैंक यू सो मच फॉर शोइंग अप एंड फॉर केयरिंग. Wonderful. So it seems that you have a very entertaining and yet very deep relationship with your brand, which is wonderful. Usually लोग इसको commerce की तरह ही लेते हैं, लेकिन this is beyond commerce to you, which is clearly evident through the conversation. Now अब हम बात करेंगे थोड़ी beyond labels, क्योंकि हम जो पूरी conversation का context is beyond labels, beyond titles, and you've clearly said कि nothing fancy. तो अगर if we are to strip your title as a CEO or the founder of Manto, what do you see your real role? अच्छा, my real role in Manto in these 5 years has kept evolving. And there's only 2 things that अगर मुझे उसको बिल्कुल summarize करना है तो it's to make sure that there's some way for the problems to be solved with the right people, या फिर मैंने जाके solve करना है to make sure कि we can create new problems. For example कि enough sales नहीं हो रही, customers नहीं आ रहे, तो we need to make sure कि how can we get there. But अगर sales आना शुरू हो जाएंगी तो उसके बाद operational सीलिंग जो आप हिट कर देंगे, then you need to be able to grow there. फिर वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना, जब आप वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे तो अच्छा इनफ डिजाइन्स बननी चाहिए. तो फिर दिस ऑलवेज गोइंग टू बी द आइडिया इज टू बैलेंस. हाँ, कि बहुत जगहों पे आग लगी हुई है, एंड टू डिसाइड कि आज कौन सी आग बुझानी है और कौन सी एक नई आग को क्रिएट करवाने का रास्ता भी बनाना है. So one of the key element that has strongly come out of this aspect is the ability to make decisions at the right time, and the ability to solve problems, look beyond problems and identify solutions, quick solutions and decision making, जो I think हर leadership story के नहीं, लेकिन उसके अंदर एक और I think बड़ी important चीज़ है to understand कि कौन सी आग को बुझाना है. So आप at any particular time तमाम आग नहीं बुझा सकते. There will be a lot of different problems. And I think the value is in understanding ke what fire is it that I need to be able to focus on today for me to get to the next step. It's clearly a story of leadership. I can see prioritizing, decision making, problem solving. Oh my God! अच्छा, मैंने इतना उस तरीके से नहीं सोचा, बस I know. I'm trying to summarize it. All right. Another card that I pick up, which I received with the Joda. You are a story where each chapter is a reflection of all the elements that have come together to create this identity of yours, to create your pehchan. Another very powerful and strong thought, pehchan. So, इस journey में आपकी पहचान कैसे निकल के आई?
सो आई रियलाइज कि पहचान जो है बहुत ज़्यादा इवॉल्व होती रहती है। जो कि पहले मेरा ख्याल था कि आपकी एक आइडेंटिटी बन गई तो बस वही आइडेंटिटी है, और उसमें बहुत ज़्यादा जो इम्पैक्ट होता है अबाउट द स्टोरीज यू टेल योर सेल्फ अबाउट हु यू आर। तो आई बिलीव के जो स्टोरीज़ मैं अपने आप को बताता गया हूँ वो काम चैलेंजेस ज़िंदगी के साथ बहुत ज़्यादा चेंज होती रही हैं, और इसी तरीके से पहचान भी इवॉल्व होती रही है। आज से 5 साल पहले मुझे शायद किताबों का बहुत ज़्यादा शौक इतना नहीं था जितना आज हो गया। तो आज वो मेरी पहचान कैसा है, क्योंकि आई एम अ रीडर, इट इज़ अ पार्ट ऑफ माई आइडेंटिटी। शायद मैं पहले मुश्किल कन्वर्जेशंस से दूर भागता था, लेकिन अब मेरे पास क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है तो आहिस्ता आहिस्ता आप वाली कन्वर्जेशंस करना शुरू करते हैं। तो मे बी इट्स बिकम ऑल्सो पार्ट ऑफ माई पहचान, माई आइडेंटिटी, कि ठीक है, इफ देयर इज अ डिफिकल्ट कन्वर्जेशन आई वुड लाइक टू टेक इट हेड्स ऑन रादर देन दैट। तो पहचान तो एक ही चीज़ में रियलाइज़ की है कि एक सी नहीं रहती, वो बदलती रहती है। और जहाँ पे मैंने सोच लिया कि यार ये पहचान मेरी बन गई है और यही रहेगी, वहाँ पे फिर ग्रोथ के भी ऑप्शंस कम हो जाते हैं। वंडरफुल, इतनी आपने प्यारी थॉट की है और इतनी ज़बरदस्त आपने बात की है। बिकॉज अगर मैं एज अ प्रोफेशनल बात करूँ तो आई थिंक दिस इज़ वन थिंग दैट वी कंटिन्यूसली टेल पीपल कि ग्रोथ कैन ओनली कम इन फ्रॉम हियर। आई मीन यू कांट रिमेन स्टैटिक, पानी भी पड़े पड़े सड़ जाता है। तो यू नीड टू फ्लो, कंटिन्यूसली फ्लो, एंड दैट हंगर to do more, to learn more, to grow, is the spirit that keeps you alive. थोड़ा सा गेयर फिर स्विच करते हैं, ठीक है। आजकल एक ट्रेंड इंस्टाग्राम पे आप देखते हैं बड़ा चला हुआ है, दिस और दैट। तो हम उसी से रिलेटेड एक मिलती जुलती चीज़ हम आपके साथ करेंगे, ठीक है। इसमें आई विल बी गिविंग यू 2 words and you'll have to pick which one you know, and it has to be instant. So are you ready? Sure. Pick one. All right. Perfection or progress? Progress. Wonderful. Chaos or structure? Pick one. I cannot. Sorry. I think chaos is as important as structure. But what would you prefer? Chaotic structure. Oh wow, interesting. Okay. Streetwear or sherwani or blazer, formal wear? कंफर्ट जहाँ पे आपको मिल रहा हो। कंफर्ट, ओके। डेफिनेटली शेरवानी में ज़रा मुश्किल है। नहीं, डिपेंड करता है। ओके। आज आपके साथ बैठ के मुझे इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, ओके, बट शाम को शायद स्ट्रीट वेयर बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। ऑलराइट, सो कंफर्ट। चाय और कॉफ़ी? कॉफ़ी। अभी देखा नहीं है ना मैंने आपको पीते हुए, इसलिए। लॉजिक और गट? अगेन दिस एंड दैट है, बट मोर प्रोन किसको पकड़ते हैं? अगर दोनों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट हो तो आप किसकी तरफ जाएंगे? आए होंगे मोमेंट्स ऐसे? हाँ, समटाइम्स गट, यस। ऑलराइट, ओके। प्लान अहेड और विंग इट? असल में जितने भी आपके सवाल आ रहे हैं ना, either it's not either this or that. It has to, most are complementary to each other. I know. So yes, plan ahead, but then when it's time, wing it. Yep, true, absolutely. Design or data? Design with data. Design with data, wow. दोनों मुश्किल थे ना, तो कैसा लगा आपको ये सेगमेंट? I think very interesting. मुश्किल भी काफी लगा. It's the choices that I would take time for. Okay, so इस सेगमेंट को नाम दिया है रूटीन और रिबेल. Okay. ठीक है. अच्छा, अब हम बात करते हैं आपके एवोल्यूशन की. ठीक है, अभी तक तो हम बात की कि आपने इस जर्नी से किस तरह से जर्नी से सीखा कि आपकी पहचान क्या बनी. अब हम आते हैं, बात करते हैं, अगले कार्ड को मैं पकड़ूंगी क्योंकि वहीं से मैं अपना ऐड करूंगी. ओके. द स्पिरिट दैट ड्राइव्स यू टू कीप मूविंग फॉरवर्ड नो मैटर व्हाट. द मैडनेस, द पैशन दैट सेट्स द सोल ऑन फायर, दैट इज़ योर जुनून. आपका क्या जुनून रहा है? मेरा जुनून हमेशा से एक तो फेल होना रहा है, एंड टू प्रूव माई सेल्फ एंड समटाइम्स अदर इज रॉन्ग अबाउट, यार हमें ऐसा लग रहा था लेकिन इसको जाके
देखा तो जाए, मे बी देयर इज़ अ डिफरेंट वे ऑफ डूइंग थिंग्स. तो वो हमेशा से एक बहुत एक्टिव जुनून रहा है, दैट इनेबल्स you to look beyond the defaults that have been given कि यार यही तरीक़ेकार है. So I think the जुनून for me is कि नहीं यार कोई और तरीका तो होगा. That question really keeps me driving forward. So how do you push those boundaries every time? It's not easy. It's tough. I think it was much easier when Manto was also in a very early stage, because जो उसका impact था वो सिर्फ मुझ तक था, but alhamdulillah now we're a team beyond 100 people. So कहीं पे भी risk taking becomes a more challenging task because it is not only going to impact me but me and then a lot of people working at Manto with Manto. So there's always a little bit of challenge, लेकिन फिर every now and then I have to reflect and go back and live those times जब एक कमरे से जब हम काम शुरू कर रहे थे and then you know there was not much to lose. तो किस तरीके से आप रिस्क लेते थे, तो वो that really helps you to push the boundaries forward. और फिर यूसुफ बशीर कुरैशी साहब हैं, एक दिन मैं उनसे बैठा तो वो गुफ्तगू में कहते हैं कि हाँ ये खौफ तो एक एंटरप्रेन्योर का, कोई भी आप काम शुरू करते हैं तो हमेशा से रहता है. जितनी ग्रोथ हो जाए, जिस स्टेज पे पहुंच जाए, तो आई बिलीव वो जो एक फियर हमेशा एग्जिस्ट कर रहा होता है कि व्हाट इफ ऑल ऑफ दिस एंड्स टुमारो. बट द आइडिया इज कि फियर से हम ड्राइव नहीं हो सकते हैं, बिकॉज दैट डिसेबल्स यू. इंस्टेड जब वो बैठे तो उन्होंने मुझे कहा कि क्या हो जाएगा ज़्यादा काम, कुछ नुकसान हो जाएगा, नुकसान होगा तो क्या होगा, काम बंद हो जाएगा, काम बंद हो जाएगा तो क्या होगा, कुछ खाने पीने को होगा कम से कम. अच्छा नहीं होगा तो क्या होगा, जिंदा तो रहेंगे, तो जिंदा नहीं होंगे तो क्या होगा, जब चले जाएंगे तो कोई 2-4 इंसान अच्छे अल्फाजों में तो याद कर लेंगे. जर्नी तो सबकी इवेंचुअली वैसी है, तो इट्स फाइन, जो करना है फिर कर लो. सो आई थिंक अ थॉट लाइक दैट इज वेरी पावरफुल बिकॉज इट इनेबल्स यू टू take those risks. Amazing thought. और आपने एक बात बहुत अच्छी इसमें ऐड की कि fear is not the driver. Fear is innate. I think हम सब में fight or flight mode built in है, DNA में बैठा हुआ है. तो पहली चीज़ जो जहन में आती है वो fear है. लेकिन जो जुनून को आग देता है वो fear नहीं देता. वो it's the opposite of fear दे रहा होता है. हाँ, लेकिन आई बिलीव कि उसमें भी काफ़ी मरतबा ये होता है कि पीपल अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन दे आर ट्राइंग टू फाइट अगेंस्ट द फियर, ऑल्सो अ मिस्टेक दैट आई डिड इन द पास्ट, वी ट्राई टू फील एंड बिलीव दैट द फियर डज नॉट एग्जिस्ट, which is not helpful because reality is कि fear exists. That just leads to lack of self-awareness. But the idea is not to acknowledge fear. Yes, acknowledge it, but learn how to dance with it. Yes, I'm afraid of coming down and sitting on the podcast maybe with you, or I'm afraid of going on the stage, and that is the reality. But how am I going to dance with that particular fear? How am I going to do it regardless of this particular fear? Yeah. So I think वो बड़ा important हो जाता है कि you don't let it drive, but also you don't consider कि exist नहीं कर रहा. You use it to dance around it. आपने बिल्कुल दिल की बात की. Why? Because I told you initially before we started recording that why I came to you and why I reached out to you, despite the fact कि एक randomly मैं LinkedIn पे किसी को reach out कर रही हूँ. Success ratios बड़े कम होते हैं. तो the reason was कि the fear was there, okay, fear of rejection या fear of trying something new. But I was like, ठीक है, let me give it a try. There's no harm. क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा. तो I mean, now I know why I wanted to come and have this conversation with you. So I can sense that gut at least. Again, moving to changing the taste a bit. There is this other segment that I'm going to add here. That's called Decode the Madness. ठीक है, and we are going to further decode that junoon. ठीक है, with a little fun. So I'll throw a few words at you, and whatever the first thought or emotion that comes to your mind, you're going to say that. ठीक है? All right? So in a fun way, we are going to explore your junoon. पहला word तो आप ही के in aspects में से है विरसा. What is it that comes to your mind जब आप विरसे की बात करते हैं? जब मैं विरसे की बात करता हूँ तो अमूमन हमने सोचा है विरसा इज जस्ट विद वेल्थ एंड फाइनेंशियल्स, बट आई बिलीव ऑल द स्टोरीज दैट हैव बीन पास्ड ऑन टू अस अबाउट हु वी आर, अबाउट व्हाट आवर
elders have done and their elders have been able to do is also a part of the Virsa. जिस तरीके से thought process मेरे वालिदैन के रहे, तो I believe that has been one of the most valuable विरासत that I have been able to get. और वो आपको बचपन से ही मिलती जा रही होती है, और उनको उनके वालिदैन से और कल्चर से और सोसाइटी से. और अनफॉर्चुनेटली इस विरासत में काफ़ी मरतबा बिकॉज ऑफ द सोसाइटी बहुत ऐसी चीज़ें भी आ जाती हैं जो कि शायद नहीं हो, तो आपने फिर डिसाइड करना है कौन से विरासत को मैंने जो है एक्सेप्ट करना है, कौन सी को नहीं करना. बट व्हेन आई थिंक ऑफ विरासत, इट्स द स्टोरीज, इट्स द इंफॉर्मेशन, इट्स द नॉलेज, इट्स द विजडम, ऑल ऑफ दैट. और आई थिंक आपके डिज़ाइन एलिमेंट में भी वो विरसा बड़ा क्लियरली एविडेंटली झलक रहा होता है. ऑलराइट, रिबेलियन, व्हाट इज इट दैट कम्स टू योर माइंड? रिबेलियन or rebel? With rebel, the thing that comes to my mind is कि हम अमूमन अपने ही आप के अंदर, अपने ही आप से और फिर काफ़ी ऐसी चीज़ों से एग्री कर रहे होते हैं जो कि जिसके ऊपर हमें कोर वैल्यू वाइज भी फंडामेंटली हम एग्री नहीं कर रहे होते, लेकिन यू नो जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट हम कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे रिबेल करना बड़ा ज़रूरी हो जाता है. इनफैक्ट इट्स ऑल द रेबल्स इन द वर्ल्ड दैट हैव मूव्ड द नीडल, दैट हैव गॉन एंड यू नो डिड समथिंग डिफरेंट. अमूमन सिर्फ वाइट चावल ही थे, लेकिन उस वाइट चावल को बिरयानी बनाने के लिए किसी ने कोई रूल्स को रिबेल किया होगा कि नहीं यार, इससे पहले की जो मेरी नोटबुक थी जिसके अंदर मुझे इंस्ट्रक्शंस मिले थे कि यार आपने ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, आई विल गो एंड यू नो ब्रेक दैट रूल एंड मे बी ऐड सम मसाला टू इट, एंड देन यू नो समथिंग न्यू वुड कम आउट. आज से पहले शायद बहुत सी मुख्तलिफ इवन इन HR के यार यही तरीका है गुस्से के साथ और लकड़ी के साथ काम करवाने का, काम करने का, उसको भी जब आप व्हेन यू गो अगेंस्ट इट, दैट्स आल्सो अ रेबेल. सो आई बिलीव rebellion is super important, and at least challenging those assumptions, challenging the default. वंडरफुल. ये जो थॉट आपने रिबेल के साथ अटैच की है, जनरली रिबेलियन की कॉनोटेशन थोड़ी नेगेटिव आती है, बट हियर देयर इज सच अ ब्यूटीफुल पॉजिटिव वेरिएशन टू द वर्ड रिबेल. और जो आपने जो मिसाल यूज की बिरयानी की, आई मीन दैट्स सो ब्यूटीफुल. मुझे किसी का भी नाम जो बहुत जिसने दुनिया को, ह्यूमैनिटी को टू द राइट थिंग मूव फॉरवर्ड किया हो, आप किसी की भी स्टोरी निकाल के देख लें, आप मुझे उनमें से कोई एक नाम बता दें कि इसने रिबेल नहीं किया होगा. मूविंग द नीडल, आई थिंक दैट्स व्हाट द थॉट इज बिहाइंड रिबेलियन. ऑलराइट, मिडनाइट आइडिया. What would be your midnight idea? What thought or emotion comes to your mind? What stupid business I could create this weekend. All right. So almost on the weekends, one of the things that I really enjoy is, you know, make business plans, ideas, stories, make a Pinterest board of the things that I am never going to do. Okay. Just to be able to enjoy. So those are my midnight thoughts. All right. Interesting. Very interesting. So another powerful word from your you know stories and from your you know concepts, azmat. What is azmat? आपने बड़ा मुझे टेक्निकल चीज़ों के अंदर जो है वो कर दिया, बिकॉज इमोशन क्या है अजमत के साथ? There is no emotion that मैं अभी कुछ भी कहूँगा तो एक नया इमोशन अपने जहन से बना के कोई कहानी आपको सुना रहा हूँगा, but as of now there is nothing that comes to my mind. I'm just blank and honest, just like that. Okay. I mean that's accepting it. Yes. That's azmat. Okay. आईने की हमने बात की है. So आईना क्या है आपके लिए? जब आप आईने में देखते ना, आई बिलीव आप और जितने भी लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, एवरीबडी वुड एग्री के जिस तरीके से आप अपने आप को जानते हैं, ऑफ द गुड्स, ऑफ द बैड्स, ऑफ द नाइस थिंग्स दैट यू हैव डन, ऑफ द मिस्टेक्स दैट यू हैव मेड, कोई दुनिया में ऐसा दूसरा इंसान है ही नहीं खुदा के सिवा जो कि आपको उस तरीके से पहचान सकता. और जब आप आईने में देख लेते हैं तो आईना झूठ नहीं बोलता, क्योंकि आईने में आप अपने आप को देख रहे होते हैं, अपने आप का सामना कर रहे होते हैं. तो आपने दुनिया के सामने आपने जो भी कह दिया है, जो भी अपनी एक डेकोरेशन क्रिएट कर दी है, आईने के सामने आते हैं तो फिर उसको हकीकत पता है, जो सामने खड़ा है उसको पता है कि कितना तुम एक्टिंग कर रहे हो, कितनी हकीकत है, कितनी कोशिश की, कितनी मेहनत की, कितनी रातें जागे, कितना तुमने ऐसे ही गुजार दिया.
आईने से नहीं झूठ कह सकते. वाओ, लव इट. तो आपके जितने आंसर्स हैं वो ऐसा लग रहा है कि मंटोस कैंपेन इन द मेकिंग. ऑलराइट, सो मूविंग टू अनदर सेगमेंट. एक और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जो आपके ब्रांड से जुड़ा हुआ है, दैट्स क्रिएटिविटी. एंड आई थिंक बारहा इन आवर कॉन्वर्सेशन सो फार you've talked about your creative juices and creative thoughts. How do you balance that creativity with commerce? क्योंकि बिजनेस की जो डिमांड्स हैं, जो फैशन इंडस्ट्री है वो ट्रेंड्स को फॉलो करता है. तो आप किस तरह से अपनी क्रिएटिविटी को अपने ब्रांड के जो कॉन्सेप्ट है, जो सोल ऑफ योर ब्रांड प्लस कॉमर्स को किस तरह साथ लेके बैलेंस कर रहे होते हैं? तो सबसे पहले तो मेरा इसके अंदर सवाल है कि वेयर डू यू थिंक ट्रेंड्स कम फ्रॉम? पीपल. सो ट्रेंड्स किसी ने कोई ना कोई क्रिएट किया है, वहीं से निकल के आ रहा होता है. बट ऑल्सो कॉमर्स इज रियली इंपॉर्टेंट. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज जो आपकी क्रिएटिव एलिमेंट जो आपने करना है उसको सस्टेन करने के लिए भी एक मॉडल तो चाहिए आपको, जिसकी बेसिस पे ऑब्वियसली इफ वी आर गोइंग टू गेट अमेजिंग आर्टिस्ट ऑन द टीम, वी वांट टू मेक श्योर दैट एवरीबडी इज फेयरली एक्नॉलेज्ड एंड पेड for that particular price. But that would only happen if the creativity can be converted into the commerce side of things. However, in the broader aspect, I believe the the commerce side is just a reflection, a side effect of what you're doing right or wrong in the creative side of things. अगर हम बहुत अच्छे तरीके से अच्छे कपड़े बना रहे हैं and then we are making sure that those can be accessed by the market, तो जो आपकी क्रिएटिविटी है वो खुद ब खुद रिजल्ट करेगी कॉमर्स के अंदर, तो उसको सस्टेन करेगी एंड देन that will enable you to create a little bit more. So कोई भी इंसान होता है जो कहता है यार मैं आर्टिस्ट हूँ या मैंने कोई काम क्रिएट करना है, कारोबार क्रिएट करना है, तो they find that right sort of a balance to be able to sustain their art, right? To be able to get the needle moving on that particular side. So I believe there's a very in-depth relationship. It's not how we have always thought कि यार business या commerce side वाली चीज़ जो है creativity से दूर चले जाती है. In fact, it is the interaction between the two. कि एक दूसरे से मिल के एक दूसरे को कैसे complement करते हैं. And I believe that has been a great thought for Manto, because हम जब ये काम कर रहे होते हैं, being clear with this particular thought has helped us be more creative, experiment more, work with amazing artists that काफ़ी लोग हैं जिनका काम मैं बस देख रहा होता था और बहुत फैन था उन लोगों के काम का, whether it comes down to storytelling, whether it comes down to the designing of certain things. लेकिन now because of the commerce side of things we are able to also work with them. So at all times I think it's about how creativity can be commercialized, but also how the commerce has to be driven from the creative side of things. But ये कि ड्राइविंग सीट पे जो है क्रिएटिव रहना चाहिए. ड्राइविंग सीट इज नॉट अबाउट के अच्छा भाई सिर्फ पैसे कमाने के लिए मैंने क्या करना है, दोनों को साथ तो चलना है, एक ही गाड़ी में सवार है. वो पैसेंजर सीट पे बैठ सकता है कॉमर्स, लेकिन जो ड्राइव कर रहा है वो क्रिएटिव होना चाहिए लाजमी. इनफैक्ट आपने तो इतनी ब्यूटीफुली इन दोनों को बैलेंस करके, और जो आपका जवाब है उसके अंदर ही एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग थॉट है कि इनफैक्ट क्रिएटिविटी को इन्हेंस और सपोर्ट करने के लिए पीछे कॉमर्स की बैकिंग है. तो विदाउट कॉमर्स क्रिएटिविटी भी शायद मान पड़ जाए आगे चल के. बिल्कुल, बिकॉज मैं अगर किसी आर्टिस्ट को जिसका एक्चुअल बहुत ज़बरदस्त आर्ट है, मैं उसको जाके कहूँ कि यार बहुत वाह वाह क्या आर्ट है, अब मुझे ऐसे ही फ्री में दे दो बिकॉज यार कॉमर्स तो बुरी चीज़ है. So I believe commerce is also sunnah. It on the other hand, it also takes the economies, takes the societies forward. It's just वो clarity बड़ी ज़रूरी है. Absolutely. So I'm going to pick up another of the cards and just going to read what's there. Fashion is none of our business. Who are we to tell you what to wear and how to style it? Very bold statement. So, आपकी ब्रांड में एक स्ट्रॉन्ग एलिमेंट ऑफ और बोल्ड एलिमेंट ऑफ विमेन अपीयर होती है, स्पेशली विमेन, एंड विमेन एम्पावरमेंट को बहुत ज़्यादा आपका ब्रांड सराहता है. सो वेयर डिड ऑल दिस स्ट्रॉन्ग थॉट और बोल्ड स्टेटमेंट्स और बोल्ड थॉट्स केम इनटू दिस ब्रांड? अच्छा, when we talk about fashion is none of our business,
this stems from the basic idea that, you know, I'm also one of the least fashionable people that might be in my friend circle. Okay. However, also who are we to go and tell other people कि यार यही अब standard है, यही trend है, and you know, go wear them. You're making certain clothes and some people will click with them. And अगर आपको समझ आ रहा है, if you think this is made for you, then come, great. Especially in 2025, in the new world that we are living in, there's so many subcultures that, you know, everybody could fit into different one of them. There's no one right, there's no one wrong. So हाँ, किसी ने बहुत कलरफुल पहनना है, वो भी ग्रेट फैशन. किसी ने बिल्कुल मिनिमल कलर्स पहनने, वो भी बिल्कुल ग्रेट फैशन. तो एक तो पहली जो आपने बात की उसका जवाब ये होगा. जो दूसरी बात है वुमेन एम्पावरमेंट, टू बी ऑनेस्ट, हमने कभी जाके इस तरीके से ना कोई क्लेम अपने एंड से डाला, ना कोई इस तरीके से. दिस इज जस्ट हु वी आर. माय वाइफ, who is an incredible partner at work as well, is the creative director and is an amazing artist, and she was one of the first few people to have joined Manto, and even the other people that had joined were women. So again, anything that in any way the company has been shaped, it's not just been shaped by me, it's been shaped by the customers, it's been shaped by the team members that were there initially as well. And if somebody believes that this is the direction that we need to be able to take, then okay, that's the direction that we need to be able to take. And that's not just for women but for any particular person. Empowerment का idea हमें कहीं पे भी किसी के लिए भी लेकर आ जाए. So with any of these cards, these are an extension of what is already there on the dresses. तो ये जैसे जुनून वाला कार्ड है, sorry, there's a stole, there's a that is built around जुनून, there's a whole scarf that is built around पहचान. जब हमने टेक्स्ट और लिटरेचर को और स्टोरीज को अपने कपड़ों के साथ इंटीग्रेट करना ही है. सो द आइडिया वाज ऑलवेज के विल इंटीग्रेट द थॉट्स, द आइडियाज दैट आर एम्पावरिंग, के जब वो आप पहने हुए हो तो यू नो यू आर व्हाट यू वेयर. इट कैन हेल्प यू हैव अ बेटर डे बिकॉज देयर इज एन एलिमेंट ऑफ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी. अगर मैं अपने आप को बेहतर माहौल के अंदर, बेहतर मूड के अंदर, बेहतर स्टोरी के साथ लेके घर से निकलूंगा तो शायद देयर आर हायर चांसेस कि मेरा दिन बेहतर होगा. वर्सेस कि मैं सुबह को ये बात अपने पास बोल के निकलूं कि नहीं यार आज तो मेरा दिन खराब होने वाला होगा, तो जितनी भी अच्छाई हो जाएगी आई विल फाइंड अ वे टू स्क्रू अप दैट डे. Absolutely. And what a beautiful tagline that your brand has. You are what you wear. I mean, in itself वो आपको you know elevated feel करता है, फील कराता है, पहनने वाले को फील करता है ओके आई एम व्हाट आई वेयर, यू नो हाउ आई लुक, हाउ आई प्रेजेंट. So this is also backed by data. So in UCLA, which is university in California, United States, वहाँ पे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटेशन की जहाँ पे Dan Ariely is an amazing human behavior psychologist. तो कुछ लोगों को उन्होंने टी शर्ट्स दी जिसके ऊपर लिखा हुआ था जेनरस, और कुछ लोगों को टी शर्ट दी जिसके ऊपर लिखा हुआ था ग्रीडी. Now they built experiments around those students throughout the day. तो वो जब बच्चे अपने डॉर्म से क्लास तक जा रहे थे, बीच में उन्होंने एक्सपेरिमेंटेशंस किए हुए थे कि किसी को पेंसिल गिरी हुई है, कहीं डोनेशन की ज़रूरत है. The people that were wearing generous were more likely to donate, were more likely to stop and help other people as compared to the people जिनकी टी शर्ट्स लिखा होता ग्रीडी. सो वी रियलाइज्ड कि अच्छा यार जो आप पहन रहे हैं उसका इम्पैक्ट एक्चुअली आपके दिन पे, आपकी ज़िंदगी पे, आपके बिहेवियर पे बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट कर रहा है. सो दैट्स व्हाई दिस बिकम्स इवन मोर इम्पॉर्टेंट. अगर हमने बहुत उदासी वाली चीज़ें लिख दी तो देयर इज अ हाई चांस कि यू नो मैं वो पढ़ते पढ़ते आई विल बिकम दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन. काफ़ी मतलब आपने टी शर्ट्स पे लिखा हुआ देखा होगा एंटी सोशल क्लब. तो वो इट्स अ स्टेटमेंट बट इट्स आल्सो रीइंफोर्सिंग दैट स्टेटमेंट कि यार मुझसे सोशलाइज नहीं करना. आई एम नॉट गुड एट टॉकिंग टू पीपल. Yeah, absolutely. So I think you've played beautifully with the power of words because अल्फाजों में अपने आप में एक पावर है. जैसे हम कहते हैं ना, नाम रखते वक्त उसका मतलब समझो because it will have an impact on the kid. इसी तरह अल्फाजों में एक पावर है और उसी पावर को आपने बहुत ब्यूटीफुली प्ले किया विद इन योर ब्रांड. सो हैट्स ऑफ टू यू एंड द टीम. बट अब हम आ जाते हैं आपकी अपने थॉट और विजन के साथ साथ टीम बिल्डिंग, जो कि हम HR वालों के लिए एक बहुत ही डियर टॉपिक है. और हम बात करेंगे हाउ do you know what is it that you do that builds such a powerful team who believes in your vision.
and who sort of gels in so well with it that it produces the results that you desire. I believe it's an ongoing journey. हमेशा से, जैसे आपने भी एक सवाल किया था रैपिड राउंड के अंदर, प्रोग्रेस वर्सेस परफेक्शन, तो आई बिलीव प्रोग्रेस बड़ी इंपॉर्टेंट है. आपको सही इंसान, टीम मेंबर वाला उसी वक्त मिलता है काफ़ी मरतबा जब आप उसको ढूंढने निकलते हैं, और जब आप ढूंढने निकलते हैं तो पॉसिबल है कि शायद गलत इंसान भी मिल जाए, बट उससे आपने रुकना नहीं है. सो इवन इफ इट्स द रॉन्ग पर्सन, गेट ऑन बोर्ड. That person within a month or 2 months or 3 months will tell you, oh, this was the wrong person and what would be the right person like. So I think clarity और 4-5 साल के अंदर आहिस्ता आहिस्ता बहुत poor experiences of working with non-aligned people as well gives you an alignment कि यार कौन से ऐसे लोग हैं जो कि इस कल्चर के अंदर थ्राइव कर सकते हैं, फिट हो सकते हैं, कौन से लोग हैं जो नहीं कर सकते. सो वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. आज भी there is a possibility कि we get someone on board and we realize कि this might not be the right person. Completely fine. उसके लिए भी बेहतर होगा कि वो better suited organization choose कर ले, और हमारे लिए भी बेहतर होगा कि we can try and find someone else that is more suited for the role. So it is an ongoing journey, but it has to start with core values or characteristics that we are looking for. और जब उसकी clarity आ जाती है तो chances of making the wrong bet बहुत रिड्यूस हो जाते हैं. और फिर जब एक इंसान इस कंपनी के अंदर जुड़ जाता है, इसका हिस्सा बन जाता है, तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स इतने ज़्यादा कॉमनली फाउंड होते हैं कि अगर किसी के अंदर नहीं भी होते तो आहिस्ता आहिस्ता वो आना शुरू हो जाते हैं. सो यू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम ऑन आइडेंटिफाइंग द राइट फिट, कल्चर फिट कह लें या विजन फिट कह लें. सो अराउंड 1 or 2 hours a day of mine are spent in interviewing, although there's so many different things that are happening, but that is probably the most important part that I think right now there is. Another very powerful and important leadership lesson that is coming out, you need to invest time on the people that you're working with. That's what many managers fail, and that's where true leadership comes in, that you're investing time with your people to understand your people and helping them grow. If there were a message or a lesson or a thought that you would like to pass on to your 25-year-old self or the younger self, what would that message be? The message would be जो recently अभी मैंने, अगर आप जानती हो जाकिर खान साहब, I'm a big fan of this guy. He's a thought leader, not only a stand-up comic, but a storyteller, a thought leader that lives in India. Yeah. So he recently, broke a record and performed in one of the largest venues in New York. तो जब उसने कर लिया तो कहता है कि मैंने करके देख लिया है, हो जाता है, तुम भी कर लो. तो the only thing that I would tell my 20-year-old self would be, हो जाएगा यार, it will be fine, करके देख लो, मसला नहीं है. होगा, मुश्किल भी होगी, लेकिन it's fine, you'll get there. कर लेगा. जो हमारे यंगर लिसनर जो सुन रहे हैं, करके देख लो, हो जाएगा. करना लाजमी है, ऐसे ही बैठे बैठे नहीं. वो यंग लिसनर्स अगर हैं सोफे पे बैठ के हाँ हो जाएगा तो वो ऐसे भी नहीं होगा. करना पड़ेगा, वो करना इज अ पार्ट ऑफ द डील. Getting up and going out there and doing it. All right, so rapid fire round. Almost we are coming to the conclusion of this wonderful conversation. मेरा दिल नहीं चाह रहा इसको end करने का, but every good thing has to come to an end. So this is called the rapid fire round. ठीक है, और आपने देखा ही होगा रैपिड फायर राउंड किस तरह का होता है. सो मैं आपको एक स्टेटमेंट या वर्ड थ्रो करूँगी, एंड वट एवर दैट कम्स टू योर माइंड फर्स्ट यू विल से इट. ठीक है, सो आर यू रेडी? जी. ऑल राइट. अ क्रिएटिव आइडिया दैट वाज वाइल्ड बट वर्कड, व्हाट वाज दैट? Sankey. Sankey, okay. We did a campaign last year called Sankey. Acha, Sankey, okay. Yes, and the whole idea was, when I pitched it, everybody within the team, even around my friends, were like, "We're not getting it. There's a very negative connotation to it." और मंटो बहुत तहजीब वाला एक brand है. But then when we did Sankey,
3 months, 4 months down the line, wherever I was going, whoever I was meeting, whether in Pakistan or abroad, people were like, "Oh man, that Sankey campaign." There was a different side of it. So, a very wild idea, and I'm really grateful how the team took it forward and how it ended up landing. Sounds so rebellious. Okay, so this is where all the rebellion. मेरे एक दोस्त ने उस टाइम से मुझे पहले कुछ कहा कि मुझे लग रहा है कि मंटो भी ना बहुत ज़्यादा सेफ हो गया है. तो then also that was the time when I had to reflect and go back to the early days कि नहीं यार, let's try to go back to things that might not work. क्योंकि अगर हर चीज़ ने काम करना ही है तो फिर maybe we are not doing the right things as well. Okay, very interesting and very powerful thought, by the way. So when you're stuck, what is your go-to ritual? Namaz. All right. That really helps me collect my thoughts and have that synchronization कि नहीं, there's someone that will make sure, और इस तरीके से पहले भी हो गया, that will make sure, we'll come out of this. So that always sets the foundation, and then it is zooming out and indulging myself in thoughts that are not around the things that I'm stuck with. So going back around things, okay, what is it that is in my control, but also दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ लोग क्या कर रहे हैं, and then sooner or later something comes up or something hits, and then we're like, okay, let's try this, let's try this, let's try this, let's try this, and at some point, you are over the bridge, but then 2, 3, 4, 6 महीने के बाद again you're under the bridge once more, and then the process repeats itself. So connecting with your soul basically, and then yes, I guess so. Wonderful. One overrated thing about entrepreneurship. बहुत word common है ना, I want to become an entrepreneur. Overrated क्या है? कि आप बहुत पैसे वाले हो जाएंगे. So ये इसलिए overrated कह रहा हूँ क्योंकि ये मिसकंसेप्शन मेरे पास काफ़ी अर्से तक रहा. हाँ, हो सकता है, हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत लंबा टाइम, क्योंकि जब आप कारोबार शुरू कर रहे होते हैं, एंड स्पेशली अगर आपका आइडिया हिट हो जाता है, इट्स वर्किंग वेल, देन इट रिक्वायर्स मोर ऑफ द फंड्स रादर देन it giving out to you. अगर आपका एक आइडिया वर्कआउट कर गया, so you need to be able to invest more of your time, more of your energy, more of your money. In fact, last year मुझे हुआ कि 5 साल हो गए, वो वक्त अब कब आएगा. तो I believe वो realignment बड़ी ज़रूरी है. हाँ, ऐसा नहीं है कि I'm not being modest in that particular sense. Yes, there is a good financial outcome to this eventually. But जब वो आना भी शुरू हो जाता है तो आप देखते हैं कि यार बेसिक रिक्वायरमेंट्स बहुत जल्दी पूरी हो जाती हैं, आहिस्ता करके. तो एंटरप्रेन्योर जब दुनिया के अंदर भी हैं तो किसी के 200 बिलियन, किसी के 400 बिलियन, कहीं 50 बिलियन, तो क्या उनकी ज़रूरियात पूरी नहीं हुई. बट अगेन ऑल ऑफ दैट मनी दे कीप री इन्वेस्टिंग इन टू सर्टन आइडियाज़. तो आपके पास जो एक इनक्रेडिबल पावर आ जाती है, वो ये आ जाती है कि इफ देयर इज एन आइडिया दैट यू थिंक वर्थ ऑफ, you can take a bet, you can take bigger bets, it becomes easier to make more and more bets. Wonderful. One underrated joy of building a brand in Pakistan? Because unfortunately there's a lot of averageness out there, there's a lot of dishonesty out there that creates a room that makes it so much easier to just stand out. अगर आप ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जब ब्रांड्स देखने जाते हैं तो उन्होंने अपने बार को इतना हाई सेट कर दिया है दैट इट्स रियली डिफिकल्ट टू गेट टू द टॉप और गेट आउट देयर. बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज पाकिस्तान की मार्केट अभी तक उस तरीके से मैच्योर नहीं हुई, और काफ़ी मरतबा हम देखते हैं बिजनेसेस के साथ ऑनेस्टी बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करी. तो आपने बहुत ज़्यादा नहीं करना. ये जो आपका जॉय है ना, अंडररेटेड इन एनी बिजनेस. आप ब्रांड नहीं भी बना रहे हैं, B2B बिजनेस के अंदर हैं, आप प्लम्बर हैं, आप मैकेनिक हैं, आप कि किसी चीज़ की टायर सही करने की दुकान है, आप ऑनेस्ट हैं, तो द लेवरेज, द काइंड ऑफ कस्टमर बेस दैट यू आर गोइंग टू बिल्ड विल बी इनक्रेडिबल बिकॉज यू विल स्टैंड आउट इन हंड्रेड्स ऑफ पीपल. सो वो जो एक अंडररेटेड जो है कि बाहर अगर हम जा रहे हैं तो वहाँ पे 100 में से 90 लोग तो सच कह रहे हैं, तो उसके अंदर आपने फिर दूसरी चीज़ों पे कम्पीट करना है. यहाँ पे हम कहते हैं कि ठीक है काम फिर भी 19-20 है लेकिन सच्चा इंसान तो है, चलो इसके साथ ही कर लेते हैं. सो
even that is an incredible USP that you can find here. Honesty. Wonderful. And finally, what does success mean to you now? I've not been able to answer that. You're still exploring. It is still exploring, but also I think हमने बहुत ज़्यादा over romanticize कर दिया success को. At any particular point, जो मुझे success लगती थी, in terms of numbers, in terms of goals, in terms of missions, अल्हम्दुलिल्लाह उससे अल्लाह ने बहुत ज़्यादा ख्वाब पूरे करवा दिए, उससे हम बहुत ज़्यादा आगे आ गए. लेकिन still some days you feel defeated. Maybe life is not about being successful altogether. It is about, yes, maybe living to the best version of yourself, the best version of your life, and that best version of your life does not mean that you are in a Mercedes only. That best version of your life means कि अगर मेरे पास दिन में 24 घंटे हैं तो how much of the freedom I have to spend those hours in things that that bring me joy. But also there are going to be things regardless of the social status, regardless of the financial status. आप जहाँ भी पहुँच जाएंगे, पेन, दर्द हर किसी की ज़िंदगी का हिस्सा है. लॉस ऑफ रिलेशनशिप्स, लॉस ऑफ फ्रेंडशिप्स हर जगह पे एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट हर जगह पे एग्जिस्ट कर रहे होते हैं. सो वी आर जस्ट लेफ्ट विद अ कपल ऑफ चॉइसेस कि आज जो मेरा वक्त है ये मैं कैसे स्पेंड कर रहा हूँ. एम आई स्पेंडिंग विद माई फैमिली, एम आई स्पेंडिंग इट हेल्पिंग अ फ्रेंड विच माइट बी such a difficult or not a joyful time spent, right? मैं अगर मेरा दोस्त बहुत फंसा हुआ है and I need to go and help him, अल्लाह ना करे इन हॉस्पिटल, बहुत अजीब सा पेनफुल टाइम है ना कि मैं 2-3-4 घंटे हॉस्पिटल के अंदर हूँ, डॉक्टर से बात कर रहा हूँ, बहुत मुश्किल. लेकिन when I am done with that, I am grateful, I am glad that I did that. If I get to choose this again, I would choose that again. So I think हमने सक्सेस को बहुत ज़्यादा ओवर रोमांटिसाइज कर दिया है. Life is maybe not about success, it's about seeing what choices I have today and what choices I'm going to make. What a beautiful closing to this wonderful conversation. जैसे मैंने कहा, मेरा दिल चाह नहीं रहा ये conversation end हो, क्योंकि इतना मज़ा आ रहा है, इतनी ज़बरदस्त conversation है, इतनी thought provoking, and but all good things have to come to an end. So thank you so much, Salman, for speaking your heart out. I mean, जैसा मंटो के philosophy है, मंटो की thought है, I mean, I can clearly see कि वो कहाँ से आ रही है, उस brand में वो creativity, वो नहीं, thoughts. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. There's a lot of other people working on it, और मेरा बहुत कम रोल है. In fact, ये जो one of the favorite shares that I have, I'm gonna do this on the closing line, इसके अपने सब यार काम कर रहे हैं और हम हैं जो नाम कर रहे हैं, तो वो सब काम कर रहे हैं और उसका मुझे जो है काफ़ी उनका क्रेडिट मिल जाता है. एंड यू हैव बीन टू काइंड एंड जनरस. थैंक यू सो मच फॉर इनक्रेडिबल कन्वर्सेशन. Most welcome. So with this we come to the conclusion. I hope you've thoroughly enjoyed the conversation as much as I have. See you in the next episode with another powerful guest. Bye bye for now.